And from IDBI side, myself, my entire team of financial inclusion, along with the people who are taking care of video KYC, those have also joined. So we will like to throw light about the bank's vision about this particular business, as well as what are the problems you are facing, how this particular thing can be addressed, and from our side, what are the certain tips to ensure a smooth journey in this particular process. So first of all, this journey we have started almost in last October, when we have officially launched that onboarding of the VLEs. And since then, we have come to this stage now that though it is a 1.5 year journey, which was not expected to come to this particular position at this particular time. It was expected rather early, but there were certain other issues which were addressing. And as sir has already pointed out that yes, CSC as a corporate, they are working with many public sector banks and some of the leading private sector banks. And IDBI is also joining that particular band. Here, I just want to highlight that yes, IDBI might have joined this particular journey a bit late, but you will be given an opportunity that whatever other banks are offering, all these services, all the products will be offered. Now, what is our vision as far as BC business is concerned? See, initially this particular BC business, when it was started, and major public sector bank, they have taken this particular opportunity to decongest their branches. Now, as far as IDBI is concerned, we are having 1,800 odd branches across the country, and relatively, we are not facing that particular problem of the decongestion. Yes, we are having the footfall, but uh, we are the one bank which have started the journey from the digital era only. So unlike other banks who have migrated from manual services to the digital journey, the customer base of IDBI Bank is altogether different, and we basically they are using all the lateral channels like internet banking and mobile banking. So compared to public sector banks, Some of the VLEs are asking कि हिंदी में हम कुछ अगर ज्यादा अच्छा लगेगा कुछ I think some people are asking, तो थोड़ा बीच ठीक में है, मिक्स करके बताएंगे तो will be good sir please. ठीक है। सो जैसा कि अरोरा साहब ने बताया कि पीएस जो आईडीबीआई बैंक की जो जर्नी रही है, जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो ज्यादातर टेक सेवी हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह इस तरीके की सुविधाएं जो है ये यूज करते हैं। दे आर यूज टू दिस पर्टिकुलर थिंग। और इसी की वजह से जो अदर पीएसयू बैंक में भीड़ वाला माहौल रहता था, वो प्रॉब्लम आईडीबीआई बैंक में अदर बैंक के तुलना में कम था। So from day one, our vision regarding this BCBA business वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो चैनल है हम लोग इसको इस प्रकार यूज करें ताकि जो हमारा नेटवर्क है जो कंपेयर टू अदर बैंक्स थोड़ा सा कम है, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर लुकिंग आउट टू एवरी लुक कंट्री। और हम लोग हर दिशा में या हर स्टेट में, हर राज्य में हम लोग अपना विस्तार करें और हमारी बैंक की जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने का अवसर जो है हम लोग दे। इस पूरी जर्नी में जो बीसीबीएफ चैनल जो है उनका योगदान जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और इसके चलते बैंक ने ये निर्णय लिया कि सीएससी जैसे एक चैनल पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट करके हम लोग इस माध्यम से अपनी शाखाओं का जो विस्तार है वो बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इस विषय में जो बैंक ने कदम लिए हैं उसी के आधार के अनुसार पिछले साल हम लोगों ने
सीएससी के साथ टाइप बनाया, आप लोगों को एनरोल किया और यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो ये रहेगी कि ये बीसी चैनल के माध्यम से ज्यादा कस्टमर, नए कस्टमर बैंक के साथ जुड़े और ना कि खाली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन तक ही सीमित रहे कि जैसे कि जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोलने हैं या जनधन की जो योजना है, जन सुरक्षा की जो योजना है उतनी चलानी है। ये इस तरीके से हमारी सोच नहीं है। इसके पीछे जो सोच है कि हम लोग हर एक गांव गली में ब्रांच नहीं खोल रहे हैं या खोल नहीं सकेंगे, बट हमारी शाखा वहां पे हो या ना हो, बट हमारे जो बीसी नेटवर्क है उनका विस्तार जो है पूरी कंट्री में होना चाहिए और हमारे बीसी आउटलेट्स जो हैं वो एक तरीके से शाखा का छोटा सा रूप हो और जो सेवाएं शाखा में मिलती हैं वो सभी सेवाएं हमारी बीसी पॉइंट पे मिले। अ, जैसा कि मैंने बोला कि सभी सेवाएं बीसी पॉइंट पे मिले, तो हमारा जो इस मकसद में जो काम जो चल रहा है वो इस तरीके से ज्यादा सेवाएं हम लोग बीसी पॉइंट में प्रदान करना चाहते हैं और उसमें कस्टमर ऑनबोर्डिंग के अलावा आपके यहाँ पे लीड का एक प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है जहां से आप नए बिजनेस के लिए, फिर वो सेविंग अकाउंट हो या टर्म डिपॉजिट हो या फिर लोन की सुविधा हो, उसके लिए भी लीड जनरेट कर सकेंगे और ये सभी चीजों के लिए आपको अपना जो रिम्यूनरेशन जो है, कमीशन जो है वो पे किया जाएगा। तो जो पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया है वो इस तरीके से बना है कि ताकि आपके यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो तो खाली ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज पे फोकस नहीं रहेगा। आपके द्वारा बैंक जो है अपनी सेवाएं रूरल और सेमी अर्बन लोकेशन में जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक देने की एक ये कवायद है और इस माध्यम से बैंक जो है अपना विस्तार जो है देश के हर एक कोने में करना चाहती है। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो केवाईसी, आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो नए गाइडलाइंस इशू किए गए उसी आधार पे बैंक ने वीडियो केवाईसी का शुरुआत किया। इनिशियल डेज में हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के ये RSBA2 के जो अकाउंट्स जो है वो हम लोग खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक स्टेबलाइज होने के लिए समय देने की जरूरत थी और अभी उसके बारे में निर्णय ले लिया गया है और आप सभी को ये सुविधा जो है वो हम लोगों ने प्रदान की है। जो वीडियो केवाईसी की टीम है वो भी मेरे साथ है। उन्होंने मुझे जो बताया है कि उनके हिसाब से 9:30 से लेके 11 बजे तक का समय और शाम में 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक का जो समय है, ये ऐसा समय है कि जहाँ पे ज्यादातर जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके द्वारा लॉगिन कम रहता है। तो इस समय में अगर आप लॉगिन करते हैं या आप उस समय की अगर अपॉइंटमेंट कस्टमर को देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सुविधा हम लोग दे पाएंगे, ना कि आपके लिए जो वेटिंग पीरियड जो है वो भी इसमें कम हो जाएगा। दूसरी चीजें उन्होंने टेक्निकली ये बताई कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक 5 मिनट का समय लगता है, जबकि आज की तारीख में बीसी द्वारा जो अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये सिस्टम नहीं है आप लोगों के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बारे में आप लोगों से जो हमारे डीजीएम है VKYC देखते हैं उन्होंने भी वार्तालाप किया है इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट डेफिनेटली हम लोग उस पे ऊपर काम कर रहे हैं जहां जहां पे इश्यूज है, क्योंकि ये नई सिस्टम है तो आप लोगों के लिए भी कुछ अड़चने आ सकती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो हमारी टीम एचओ में जो है उसके प्रति उसका जो ये है रुख है कि जहां से भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पे वो लोग इंटरफेयर करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इनिशियली कुछ जगह पे ऐसे हुआ है कि कस्टमर को थोड़ा ज्यादा समय तक वेट करना पड़ा है,
उसके लिए मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा एक 8 दिन में ये सिस्टम जो है वो और स्टेबलाइज़ हो जाएगी। आप लोग भी यूज़्ड टू हो जाएँगे। जिस तरीके से फ़ोटो खींचना है, लाइट नहीं आ रही है या अकाउंट है या नहीं है, इसके बारे में जो भी सूचनाएँ आपको ट्रेनिंग के द्वारा दी गई है, आप कृपया उसका पालन कीजिए और आई एम श्योर कि आने वाले समय में ये सुविधा जो है आपके लिए बहुत आसान और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसके अलावा भी ई-केवाईसी के माध्यम से अकाउंट खोलने की कोशिश जो है, वो हमारे लेवल पे चालू है और उस माध्यम में भी कुछ काम चल रहा है। बहुत जल्दी इसके बारे में हम लोग आपसे फिर से बात करेंगे कि जैसे ही हम लोगों को अप्रूवल मिल जाता है कि ई-केवाईसी के थ्रू भी अकाउंट खोलने की प्रोसेस अ, अंडर प्रोसेस ये है, ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही हो जाएगा उसमें हम लोग करेंगे। आगे चल के जो है लीड जनरेशन का प्रोग्राम हम लोगों ने जैसे लॉन्च किया है, मैंने वहाँ पे देखा है कि कुछ लीड्स आप लोगों ने जनरेट किए हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ लीड्स जो हैं वो काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने ऐसा कोई एक मॉनिटरिंग सिस्टम कर रहे हैं कि आपके द्वारा जनरेट किया हुआ जो लीड है, तो उसके बारे में डिसीजन जो है वो सही टाइम पे लिया जाए और वो उसमें अगर कोई असुविधा है, अगर वो लीड क्लोज़ नहीं हो रही है या कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो उसके एक मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग बिठा रहे हैं ताकि आपने दी हुई जो लीड है, उसका क्या पता हुआ, वेदर वी आर रेडी टू ऑनबोर्ड दैट पर्टिकुलर कस्टमर, वेदर वी आर रेडी टू गिव द लोन टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर। इसके बारे में जो निर्णय है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा या कुछ समय में ही पता चल जाएगा। तो इस तरीके से उसमें हम लोग कुछ सुधार कर रहे हैं ताकि आपके द्वारा दिए हुए लीड्स जो हैं, वो बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाए और नॉट ओनली दैट इसका फ़ायदा जो है वो सभी वीएलईज़ को भी होगा क्योंकि इसमें भी कमीशन का अच्छा खासा प्रावधान है। साथ में जो जन सुरक्षा की जो स्कीम्स हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही आप अभी नए अकाउंट्स ओपन करना शुरू कर रहे हैं, उसमें आप कृपया ये ध्यान रखिए कि जो कस्टमर्स को आप ऑनबोर्ड करा रहे हैं, उसमें जो जन सुरक्षा के जो 3 स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और पेंशन योजना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल कस्टमर हैं, उनको इंश्योर कीजिए क्योंकि ये सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजनाएँ हैं। इतने कम पैसे में ये सारी सुविधा सरकार ही दे सकती है कि ₹2 या 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मात्र ₹20 में आप कस्टमर को दे रहे हैं और जो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा जो है, वो भी हम लोग ₹436 में दे रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छी योजनाएँ हैं, इवन एपीवाई पेंशन योजना जो है, उसमें भी ₹5000 तक का निश्चित निवृत्ति वेतन एश्योर्ड है और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो कस्टमर्स ऑनबोर्ड करा रहे हो, उसमें कृपया ये जन सुरक्षा के जो स्कीम्स हैं, उसका भी आप एनरोलमेंट करा दीजिए, साइमल्टेनियसली करा दीजिए और इसके लिए भी आपको जो कमीशन जो है, उसकी सुविधा की गई है। आई थिंक जो बैंक का जो इसके बारे में सोच है, बैंक का जो विज़न है, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है एंड आई एम श्योर कि आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक और सीएससी का ये जो गठबंधन है, ये एक सक्सेसफुल वेंचर की तरह सामने आएगा और बैंक का जो विज़न है कि हम लोग देश के हर गली-कूचे में जो पहुँचे और उसके लिए जो वीएलई का जो रोल है, उसके चलते हम लोग ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इसी माध्यम से बैंक और वीएलई और साथ में सीएससी ये तीनों जो एक गठबंधन का जो हिस्सा है, हर एक का इसमें फ़ायदा हो, जो उनके जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो होने के बाद उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बढ़ती जाए और इसकी वजह से हम लोग देश के उन तमाम लोगों तक पहुँच सके कि जहाँ तक बैंकिंग की सुविधा पहुँच नहीं रही है। जो मूल उद्देश्य है, वो भी सक्सेसफुल हो जाए और साथ में ये काम करने वाले लोग जो हैं, इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका भी भला हो। इसी के साथ आशा करता हूँ
कि ये गठबंधन बहुत सक्सेसफुल रहेगा। फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद रेवड़ेकर सर, जनरल मैनेजर IDBI। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आपने समय निकाला और सभी हमारे BC और हमारे FI की जो टीम है स्टेट्स में, उनको एक क्लियर हो गया होगा कि बैंक की सोच क्या है और बैंक की जो स्ट्रेटजी है कि भाई हमारे जो बैंक के ब्रांचेस हैं उसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं जिसको हम BC के द्वारा कवर करना चाहेंगे, ताकि कस्टमर जो है कुछ और एरियाज के कस्टमर भी ब्रांच के साथ जुड़ पाए और बैंक का बिजनेस जो है वो बढ़ा सके। उसी में एक मदद करने के लिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन देयर इज ए बिजनेस सेंस आल्सो। गवर्नमेंट तो बोल ही रही है, लेकिन एक बिजनेस सेंस भी है। अगर आप जनधन अकाउंट देखेंगे तो जनधन अकाउंट में 1,60,000 करोड़ रुपए अभी जमा हो चुका है पूरे इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की पहल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बिजनेस सेंस भी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी वायबिलिटी भी है, बैंक को भी उसमें बिजनेस मिलता है। तो वही बैंक की सोच है कि जो भी प्रायोरिटी एरिया है बैंक के, जैसे रेवड़कर जी ने बताया कि लोन को भी अभी हमने लीड जनरेशन का काम भी शुरू किया है, और कासा का जो एक प्रायोरिटी रहता है बैंक का, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स का, जो लो इंटरेस्ट वाले जो डिपॉजिट अकाउंट्स है उसकी प्रायोरिटी होती है। वो डेफिनेटली जितने भी बैंकों ने BC चैनल को यूज किया है, बल्कि मैं ब्रांच लेवल पे भी बहुत जगह मैंने बात की है, जब हम BC विजिट करते हैं तो ये देखा कि जिस भी ब्रांच में BC अच्छे से कनेक्टेड है उस ब्रांच का जो सेविंग का या करंट का जो बजट होता है या रिटेल लोन के जो बजट होते हैं वो जरूर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उसका कस्टमर स्प्रेड जो है वो बढ़ जाता है। तो नेचुरली तो बैंक की जो प्रायोरिटी है बिजनेस की, उसको पूरा करने के लिए जो बैंक की सोच है इस BC चैनल को यूज करना है और से अधिक BC बढ़ाने हैं। जो अनकवर्ड एरियाज हैं जहां पर ब्रांच नहीं है लेकिन मैनेजेबल डिस्टेंस हो, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं BC भाई बहन, बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमने BC बनना है, तो जो भी बनना चाहते हैं वो जरूर हमारे स्टेट टीम के साथ कनेक्ट करें, या हमारा जो मेल ID है idbi.csc@csc.gov.in, इस पे आप मेल करें। हमारी जो स्टेट की टीम है, स्टेट टीम से कांटेक्ट करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वहां पर, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, अन्यथा ये मेल भी आप कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस का आपका जरूर ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई ब्रांच अगर 50 किलोमीटर दूर है तो इट डज नॉट मेक सेंस कि भाई 50 किलोमीटर कस्टमर सर्विस करने के लिए वहां जा नहीं पाएगा, तो वो सेंस नहीं बनता। लेकिन जहां मैनेजेबल डिस्टेंस है वहां पर जरूर हमारे जो BC बनना चाहते हैं, बहुत सारे, कोई फिजिकली हैंडीकैप भी है, मैं देख रहा था कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, अच्छी बात है। जो आपकी जागरूकता है या जो आपकी इच्छा में मुझे बोलना चाहिए ये BC बनने की, और हमारी भी कोशिश यही है कि हम अधिक से अधिक हमारे VLE भाई बहनों को इसमें जोड़ें और उनको एक अपॉर्चुनिटी दें कि BC चैनल के द्वारा उनको हम इनकम का एक सपोर्ट दे सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नाउ आई विल रिक्वेस्ट हमारी जो IDBI बैंक की VKYC टीम भी हमारी जुड़ी हुई है, सो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अगर कुछ टेक्निकल कुछ बताना चाहें तो आई विल रिक्वेस्ट देम टू काइंडली शेयर। और हिंदी में अगर रखेंगे तो थोड़ा सा हिंदी ज्यादा अच्छा रहेगा लोगों के लिए, प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रत्नेश शर्मा हूँ। मैं वीडियो केवाईसी का प्रोडक्ट हेड हूँ IDBI बैंक के अंदर। हमारी पूरी टीम है जिसके के अंदर हमारे अलग अलग लोकेशन पे 4 लोकेशन है। 4 लोकेशन पे हमने लैंग्वेज को भी ध्यान में रखते हुए 4 लोकेशन पे अलग अलग हमने वीडियो केवाईसी को खोला है। जैसे कि मुंबई में है, चेन्नई में है, पंचकुला में है, गुवाहाटी में है। वहां पे बात करने आप जानते हो कि वीडियो केवाईसी आप में से कई लोगों ने खोला, जैसे कि मार्च के महीने में ही RSB8 अकाउंट 331 VKYC के थ्रू अपन ने ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर बात करते वक्त अगर अपने को कोई गांव है, गांव में जैसे तमिलनाडु का गांव है, तमिलनाडु के अंदर प्रॉब्लम आती कि लैंग्वेज का एक कंस्ट्रेंट है। जैसे भी साहब ने मेरे को बोला, सर ने, कि हो सके तो हिंदी में बात करिए। आप लोगों ने भी कुछ कमेंट दिए कि आप हिंदी में बात करिए, तो कुछ को इंग्लिश चलती है, कुछ को हिंदी चलती है। तो ऐसे अगर हम इंटीरियर में जब जाते हैं, जो BCBF की एक वो भी है, अपना टारगेट सेगमेंट भी है, अनबैंक्ड एरिया, तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं।
तो हमारे पास में अभी जितने ऑफिसर्स उसके अंदर तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस हमने कवर करी है। ऐसे हम और स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं जिनको अलग अलग लैंग्वेजेस आती है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है। तो अगर किसी को उस लैंग्वेज में बात करना है तो जिसे एडेड फीचर फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, जिसके अंदर यू स्पीक योर लैंग्वेज। शॉर्टली हम इसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं कि आप पहले ही उसके अंदर अपना लैंग्वेज को चूज कर पाएंगे कि किससे आपको बात करना है। अभी जैसे मेरे पास कॉल आया और मुझे तमिल नहीं आती है, तो मैं वो कॉल अपने तमिल कलीग को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो तमिल कलीग से आपकी तमिल की लैंग्वेज में भी बात हो जाएगी, मलयालम वाले को मलयालम की लैंग्वेज में बात हो जाएगी। ऐसी नॉर्थ ईस्ट है, पंजाबी है, कश्मीरी है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज ऑलरेडी हमने कवर करी है। वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस हम कवर कर सकते हैं। अब जो हमारा जो एक्सपीरियंस इसमें ये रहा है सर कि जैसे कि जो आपके RSBA टू जीरो बैलेंस अकाउंट्स है, इसके अंदर क्या होता है कि अल्टीमेटली देयर इज अ ह्यूमन बीइंग जो कि आपसे बात करता है, क्योंकि इसमें केवाईसी सर्टिफिकेशन है। आप लोगों का फायदा क्या है इसके अंदर? आपका फायदा इसमें ये है कि आपको कोई पेपर नहीं भरना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या क्या करना है? आपको ये इंश्योर करना है कि कस्टमर के पास पैन कार्ड हो, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि हम जो क्रीडेंशियल्स उसके वेरीफाई कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है, वो हम कैसे जाता है। तो बीच में जो आपकी NSDL की साइट होती है वहां से हम आपका नाम ले रहे हैं, जो आपकी UDI की वहां से NSDL की साइट से आपका नाम ले रहे हैं, UDI आधार की साइट से एड्रेस ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो भी चीजें हम ले रहे हैं वो गवर्नमेंट साइट से आ रही है। तो उस केस में आपको पैन और आधार उससे लिंक होना चाहिए। सवेरे 9:30 से, जैसे रविडेकर सर ने भी बोला कि सवेरे 9:30 से लेके 11 के टाइम में रश कम रहता है, आप उस टाइम पे ट्राई करिए, जल्दी नंबर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी 30 35 50 लोग बैठे हैं, एक बार हम 50 कॉल ले सकते हैं या 100 कॉल ले पाएंगे, उससे ज्यादा कॉल हम एक बार में नहीं ले पाते हैं। तो एक कॉल को हम जितनी जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद में अगला कॉल आता है। एक कॉल के अंदर आइडियली हमको 5 मिनट लगने चाहिए, 5 से 7 मिनट। क्योंकि आपको मोबाइल, अगर लैपटॉप है तो आपको, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपको ऐसे पास में रखना पड़ेगा, देन ओनली हम वहाँ पे क्रॉप कर पाएंगे पैन कार्ड को। तो ये छोटी छोटी चीज है। मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन 2 दिन पहले जो हुआ था उसमें बताया है। कस्टमर के चेहरे पे लाइट आनी चाहिए, क्योंकि हम फोटोग्राफ खींचेंगे कस्टमर का, तो हम कस्टमर से फोटोग्राफ नहीं मांग रहे हैं। एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, व्हाइट पेपर के ऊपर वो कैमरे के सामने साइन करेगा, दैट सिग्नेचर जो है हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो बस और बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत क्लियर प्रोसेस है। आपको अगर मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप से आप कर सकते हैं, स्मार्टफोन चाहिए, आप किसी से भी, आपको परमिशन देनी है, कैमरे की परमिशन देनी है क्योंकि हम फोटो लेना है, माइक्रोफोन की परमिशन देनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक बार ये चीज हो जाएगी, जैसे हमारा एक और चैनल है OBST चैनल, नाउ ये पोजीशन है कि इतने कॉल से कि मतलब एक बार आपको आदत लग जाए कि दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। आज की तारीख में हम लोग सिर्फ सिंगल अकाउंट अलाउ कर रहे हैं। अभी 11 स्कीम कोड टोटल आ गए, जैसे सर ने बोला कि RSBA 2 के अलावा भी और भी स्कीम कोड है जो डे टाइम में हम लोग कर सकते हैं, जैसे RS न्यूज से लेकर, ऑलरेडी इसमें आप लोग कर भी रहे हैं। तो वो जो स्कीम कोड है वो हम इसमें करंट अकाउंट भी लेके आ रहे हैं, अभी शॉर्टली करंट अकाउंट भी इसमें आ जाएगा। तो बैंक का फोकस डिजिटल चैनल के ऊपर काफी ज्यादा है, जिससे कस्टमर की कन्वीनियंस बढ़े। रिक्वेस्ट आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए। इसमें सील, ठप्पे, सिग्नेचर विग्नेचर कुछ नहीं लगता है, एवरीथिंग हम लोग खुद साइट से वेरीफाई करते हैं। आपको सिर्फ कस्टमर से बात करनी है, उसको बिठाना है, बिठा के उसकी वीडियो केवाईसी करवानी है। अकाउंट नंबर का SMS, ईमेल, उसके ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल पे चला जाएगा, SMS पे तो जाएगा ही जाएगा। तो दैट विल बी गिवन टू द कस्टमर। जो आप नॉर्मल बैंक से खोलते हैं वैसे ही है, जो फैसिलिटी वहाँ है वही फैसिलिटी यहाँ है। वीडियो केवाईसी से कि आपने फिजिकल खोला, फैसिलिटी में कोई फर्क नहीं है, बस कन्वीनियंस में फर्क है। एक चीज जो 5 मिनट 4 मिनट में हो सकती है, उसके लिए हम फिजिकल फॉर्म भरे, फिर उसको ब्रांच में दे, फिर ब्रांच वाला साइन करे, फिर उसको RPU भेजे, फिर वहां से होकर के आएगा अकाउंट नंबर 2 दिन बाद, या आपको सेम डे अकाउंट नंबर मिल जाता है। वी आर फर्दर फाइन ट्यूनिंग, अभी टाइम लग रहा है पर उसमें फर्दर फाइन ट्यूनिंग में हम इसको विद इन हाफ एन आवर वी आर ट्राइंग टू गिव द अकाउंट नंबर, आधे घंटे में आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, चेकबुक, ड्यूरेबल्स सब। आपके कोड डालने के लिए भी हमने इसे व्यवस्था करी हुई है, आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। कस्टमर जर्नी में ही जो आपको बैंक ने कोड दिया, BCBF का आपका जो कोड होगा, आप सिर्फ वहां पे इनपुट कर दीजिए, अपने आप वो सिस्टम में आ जाएगा, पीछे का पूरा कैलकुलेशन उसके साथ अपने आप चलता, एज इधर टू इट विल हैपन। इट्स अ वंडरफुल फैसिलिटी, आई विल से दैट। Please utilize it to the maximum. And thanks for all the support and banking with us. With thanks to CSC and all the members. Thank you, sir.
चलिए नाइस, पूरी टेक्निकल टीम हमारी बैंक की इसमें सपोर्ट कर रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, कोई भी चीज अपने आप में ये नहीं होती कि भी परफेक्ट है, जैसे जैसे समय आएगा उसको हम आगे भी उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी चीजें हैं वो कोशिश चलती रहेगी। तो अभी मिश्रा जी, हमारे एवीपी मिश्रा जी हैं, राजेश मिश्रा जी, I will request him to now, present his views. Yes. Thank you, sir. Sri Revrekar sir, GM IDBI, entire team of IDBI, Arora sir, हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के पूरे CSC के सेंट्रल टीम, स्टेट टीम और सभी भाई और बहनों, आप सभी को रामनवमी का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर, जैसा अभी ये जो कि ऑस्पिशियस डे पे IDBI KYC लॉन्चिंग पे हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग IDBI BC रिलेटेड डिस्कशन, सबसे पहले हमारे VLE भाई बहन जो भी कनेक्ट हैं या जिनको भी आगे मैसेज जाएगा, तो कुछ BC रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आप लोगों का आता है हमारे थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, सोशल मीडिया हैंडल, बहुत सारा आता है जो कि हमें चाहिए था, हमें नहीं मिला। बहुत जगह वो मेल भी करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम उन सभी VLE को बताना चाहते हैं जो कि आप लोग के लिए ही हम डिफरेंट बैंक के साथ टाई अप कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे VLE भाई बहनों को BC पॉइंट दिया जाए। लेकिन उसमें बहुत बार आता है आप लोग का, आज 1 साल से हमने अप्लाई किया, हमें नहीं मिला, 6 महीना हो गया, हमें नहीं मिला। तो उसमें सभी VLE भाई बहनों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि पहला तो आप लोग के लिए ही हम सारे प्रोडक्ट्स जो भी इनिशिएटिव लाते हैं आप लोग के लिए ही लाते हैं और आप लोग के लिए ही सब कुछ है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या डिपेंडेंसी है, जो CSC किसी को भी कहीं पे भी BC पॉइंट नहीं अलॉट कर सकती है जब तक कि बैंक का वहां पे क्या मैंडेट है। ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है, जो बैंक का रिक्वायरमेंट होता है जो वहां पे हमें BC लगाने हैं। आप लोग बैंक मित्रा के थ्रू अप्लाई करते हैं कि हमें IDBI का BC चाहिए या XYZ बैंक का BC चाहिए, हमें मिल जा रहा है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम तो 6 महीना हो गया अप्लाई किए, हमें BC नहीं मिला। ये हम लोग बैकएंड में काम करते हैं, लेकिन अगर वहां पे हमारे पास मैंडेट नहीं है, इनकेस डिस्टेंस का इशू है, दूसरे बैंक का वहां पे अभी हमारे पास मैंडेट नहीं है, तो हम चाह के भी आपको नहीं दे पाते। वैसे भी ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो ही गया, अब जस्ट 1 दिन बचा है आगे, तो उसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो उसमें भी आप लोगों ने जो भी अप्लाई किए हैं सबका डेटा हमारे पास है, और उस सभी का उसके लिए भी BC बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान रखना है, जो वो सब आप फुलफिल करके रखें। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो बताया जाता है, हम बार बार बोलते हैं जी कि आप एक्टिव रहें, मिनिमम महीना में कम से कम आपका जो क्राइटेरिया है जो कि इतना ट्रांजैक्शन आपका होते रहना चाहिए, वहां पे हमें बैंक से मैंडेट मिला होना चाहिए। तो जरूर आप लोग को सभी को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का पॉइंट हम जरूर देंगे। लेकिन आप कभी होता होगा जो उसको दे दिया हमको नहीं दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है, और किसी के भी साथ भेदभाव CSC नहीं करती, ना CSC का कोई पर्सनल एजेंडा इंटेंशन है। आप लोग ही सब कुछ हैं CSC का, जितने भी VLE भाई बहन हैं आप ही लोग हैं, इसका पूरे के पूरा होल आप ही लोग के द्वारा सब कुछ CSC चल रहा है। तो आप लोग धैर्य रखें, जहां पे भी आप हैं, अगर जहां पे आप बेस्ट काम करते हैं, हमें अगर जिस भी बैंक से लोकेशन आएगा तो उस एरिया में अगर जो भी बेस्ट रहेगा हम उनको जरूर BC देंगे। लेकिन कभी कभी आता है जो 4 लोग हैं तो आप बोलेंगे जो हम भी क्राइटेरिया पूरा किए, हम भी किए,
उस केस में होता है कि किसी भी एक आदमी को ही हम वहां पे बैंक अलॉट करती है, वहां पे तो दो को हम देंगे नहीं। तो ये सब कुछ कठिनाई आती है। आप लोग जितने भी हमारे वीएलई हैं उनको भी, वो लोग काफी एजुकेटेड हैं, सब समझदार हैं, वो समझते होंगे जो कि हम सीएससी के पास कोई बीसी नहीं है जो कि हम नहीं दे रहे हैं आपको। हमारे पास अगर अवेलेबल होगा तो हम तो खुद ही चाहते हैं जो कि सबको कॉल कराते हैं, सारा हम स्टेट भी हमारा बीसी से वीएलई से कनेक्टेड है, हम मांगते भी हैं यहाँ से ये मैंडेट आया है आप लोग बताओ। तो वो सब कुछ है, मैंडेट पे डिपेंड करता है। अगर आपने अप्लाई किया है वो अच्छी बात है, आपने कंसर्न दिखाया है हमको इस बैंक का बीसी चाहिए या कोई भी बैंक का बीसी चाहिए, और हम भी चाहते हैं जो भी बैंक का मैंडेट हमारे पास है वो जल्दी से जल्दी फंक्शनल में आ जाए। तो कहीं पे भी ये इंटेंशन नहीं है जो कि हम आपको देने में डिले कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं जो कि जल्दी से जल्दी ही बीसी को, वीएलई को हम एज ए बीसी काम स्टार्ट करा दे। तो प्लीज आप लोग धैर्य रखिए, ऐसे ही जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट करते रहिए। जैसे जैसे हमारे पास बैंक का बीसी आता जाएगा, आप सभी आदमियों को, जितने लोग अप्लाई किए हैं, जो भी एलिजिबल हैं एज पर क्राइटेरिया डिफाइंड बाय सीएससी एज वेल एज बैंक, तो उसमें जिसका भी होता जाएगा हम उनको ऑनबोर्ड करते जाएंगे। तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए, और हम नेक्स्ट ईयर में जितने भी लोग आप लोग अप्लाई किए हैं हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग को बीसी का काम दें। लेकिन जो अभी हमारे बीसी हैं उन सभी के लिए भी है जो कि गवर्नमेंट बैंक में जो भी पीएसयू हैं, जो भी बैंक है, उनके भी अपने कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिसको कि काम करवाना होता है। जैसे रेवरेकर सर बोले जी कि सोशल सिक्योरिटी अगर अकाउंट हम खोलते हैं तो सोशल सिक्योरिटी, उसको सोशल सिक्योरिटी में एनरोल करना है। ये नोवेल कॉज है एक तरह से, देखिए आप लोग ऐसा काम करेंगे तो एक तरह से उन लोगों का भलाई ही करेंगे। हो सकता है जो उनको बहुत कुछ मालूम नहीं हो तो आप उनको बताएंगे। तो सबसे पहला काम है, अगर आप बीसी मॉडल चलाना चाहते हैं तो उस एरिया के ज्यादा से ज्यादा लोग का अकाउंट आप खोलिए, जो हमने वीकेवाईसी के थ्रू अभी आईडीबीआई में लाया है, और वो रियली में इजीएस्ट प्रोसेस है। उसको अभी आपको लगता होगा इसमें इंस्टेंट, एक तरह से इंस्टेंट अकाउंट की बात हो रही है, जो कोई पेपरलेस बैंकिंग है। कल तक तो आप बोल रहे, हमेशा से ये बात होती है जो कि हमें फॉर्म को साइन करना है, फिर ब्रांच जाना है, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर हमने ये ले आया जो कि इसमें कहीं नहीं आपको जाना है। तो इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता जो कि कस्टमर आया, सब कुछ 5 मिनट में हम काम खत्म। एक आप अगर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखते होंगे, इवन कि अर्लियर आईडीबीआई का भी अकाउंट फॉर्म देखेंगे तो 10-15 मिनट तो आपको फॉर्म भरने में लगेंगे मिनिमम। तो वो तो उससे जितने देर में फॉर्म भरेंगे उतने देर में तो अकाउंट ओपन हो रहा है। और ये जो जीरो बैलेंस का स्कीम कोड है उसको आप ध्यान से उसी स्कीम कोड में अकाउंट खोलें, और उसके बाद कोई भी चार्जेज नहीं है। आपका जो भी है, आपको चेकबुक हो कि एटीएम हो, विद इन ए टाइमलाइन गिवन बाय द बैंक, वो डिलीवर होगा। कस्टमर का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे डिलीवर होगा। तो इसमें आप जो भी हमारे अभी के डेट में 2100 प्लस के आसपास, 2150 के आसपास बीसी है, तो वो सभी से रिक्वेस्ट है जो कि अभी 2 दिन बचा है, उस 2 दिन में ज्यादा जो टाइम स्लॉट दिए हैं, आज जैसे हॉलीडे है ज्यादातर जगह पे, तो उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोल सकते हैं। कल भी जो टाइम जो वो प्रिस्क्राइब किए हैं बैंक के द्वारा 9:30 to 11 और 4 PM to 7 PM, उस पीरियड में अगर हम अकाउंट खोलते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा अकाउंट होगा। और ऐसा ही आप कस्टमर को भी आप एक प्रिंट आउट लगा लीजिए जो कि अकाउंट खोलने के लिए आप 9:30 to इतना बजे आइए तो इट विल बी बेटर, या 4 to 7 आइए। तो ऐसा कस्टमर को भी कोई वेटिंग टाइम नहीं लगेगा, और उस पीरियड में जो भी कस्टमर आपका आएगा तो फटाफट अकाउंट भी खुलेगा। तो उससे क्या होगा, जब आपका भी कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा, और जब एक बार कस्टमर बेस बढ़ेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आप दे पाएंगे। जैसे रेवरेकर सर बताए जो कि लोन ला रहे हैं, अभी करंट अकाउंट भी शुरू हो जाएगा, या सेविंग का दूसरा स्कीम का है वो भी आप खोल सकते हैं।
तो एक तो प्रोडक्ट चूज करने टाइम में बाद में बहुत बार आता है आप लोग का मैसेज जो कि हमने तो ये किया इस उसमें हो गया, या हमें आईडीबीआई से भी फीडबैक मिला जो कि शायद आप सही प्रोडक्ट कोड को सेलेक्ट नहीं करते हैं और बाद में आप बोलेंगे ये तो हमारे को ये 2500 मांग रहा है तो कुछ 5000 मांग रहा है। तो काइंडली आप प्रोडक्ट चूज करने टाइम में आप केयरफुली प्रोडक्ट को चूज करें जिससे कि आपको कोई कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं हो। तो अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे पास जो सब आदमी को मेल आईडी जो शेयर किया अरोड़ा सर भी पहले बताया idbi.csc@csc.gov.in पे भी मेल करिए। हमारा टिकट सिस्टम है सभी वीएलई के लिए, तो आप टिकट बैंक सेलेक्ट करके उसमें टिकट डालिए जो आईडीबीआई का हमारा ये आईडी है और हमें ये समस्या है, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई देंगे, जरूरत होगा तो हम आपसे फोन पे बात करेंगे, हम आपका रिजॉल्व कराएंगे। तो बहुत सारा हेल्प डेस्क का हमारा चैनल है जो कि पैन इंडिया आप सभी आदमी को सर्कुलेट किया है, जो हेल्प डेस्क के थ्रू आप फोन कीजिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, आपको उस फोन पे हेल्प देगा है। तो जितना भी प्लेटफॉर्म है, इधर हेल्प डेस्क है, मेल आईडी है, हमारा टिकट सिस्टम है, कहीं से भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर जो हमारे बीसी हैं वो किसी भी बैंक के हों, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देंगे, सॉल्यूशन जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे, रिजॉल्व कराएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस 2 दिन में सभी जो 2100 बीसी हैं आईडीबीआई के, वो सभी कम से कम 5 से 10 अकाउंट जरूर ओपन करेंगे, जिससे बैंक को भी लगेगा, इनको भी ये लगेगा कि नहीं हमको बहुत सारा प्रोडक्ट वीएलई के थ्रू करना है क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये भी टाइम है हमें शो करने का। अदर देन जब मैं ये प्लेटफॉर्म सारे वीएलई आप लोग सुन रहे हैं, तो अदर देन आईडीबीआई जो भी बैंक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो भी आप लोग बीसी हैं, 2 दिन मार्च में बचा हुआ है, सभी बैंक के बीसी ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि आप लोग का रेम्युनरेशन भी बने। और बैंक ने जो बताया है जो सोशल सिक्योरिटी करना है या जो भी आप हम लोग को एडवाइस किए हैं और वाइस वर्सा हम लोग आप लोग को शेयर किए हैं कि ये सब चीज करना जरूरी है, तो वो इस 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि बैंक के लिए भी अच्छा है, सीएससी के लिए भी अच्छा है और आपका भी रेम्युनरेशन बनेगा। तो इस हॉलीडे के छुट्टी के दिन में आप सभी कनेक्ट हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली सभी वीएलई भाई बहनों को। और जिसको भी बीसी मिला है वो बैंक प्रायोरिटी सीएससी के प्रायोरिटी पे काम कीजिए प्लीज, और जिसको भी नहीं मिला है वो धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। हम सभी को जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, हम सभी को अगले वर्ष शुरू होते ही सभी को ग्रेजुअली हम बैंक से सब बैंक के साथ काम कर रहे हैं, सब बैंक के साथ बात करके ज्यादा से ज्यादा लोग को जल्दी से जल्दी हम बीसी देने का पूरा प्रयास रखेंगे। धन्यवाद। कुछ बोलना है? चलिए धन्यवाद मिश्रा जी। अभी एक मैं बताना चाहता हूँ, हमारी प्राइमरी कंडीशन बीसी बनाने के लिए है कि वीएलई होना चाहिए, यानी उसका सीएससी आईडी होना जरूरी है। दैट इज द प्राइमरी कंडीशन। नंबर 2, हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ पर बीसी बनाने के लिए कोई चार्जेस नहीं लिया जाता, ना कोई डिपॉजिट लिया जाता है। बहुत सारे लोग फेक साइट पे जाते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, तो वहां पर भी कुछ फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सीएससी में किसी भी तरह के बीसी चैनल में आने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप बैंक मित्रा पे रजिस्टर करें, आपका इंक्लाइनेशन पता चल जाएगा कि आपको बीसी बनना है। एक तो वीएलई बन गए आप, वीएलई बनने का मतलब ये नहीं कि आप बीसी बनना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो जिनको बीसी बनना है वो बैंक मित्रा पे रजिस्टर करा लें, तो आपका पता चल जाएगा। उसमें आपकी प्रायोरिटी लिखें, तो वो प्रायोरिटी जरूरी नहीं है कि जो आप बोलेंगे बैंक वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसी बैंक में आपको हम बीसी बनाएं। लेकिन वहां पर भी हमें पता तो चलेगा कि यस कि आपका इंक्लिनेशन है, आप बनना चाहते हैं बीसी। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक हमें ध्यान रखनी है।
बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। बैंक भी यही चाहता है कि अच्छे लोग जो कमिटेड, मैं फिर बता रहा हूँ, बीसी बनना सिर्फ नाम के लिए बनना, हमें ऐसा बीसी नहीं चाहिए। जो आदमी बीसी बन के अपनी वर्थ को एस्टेब्लिश करे, हाँ कि मैं बीसी बना हूं और मैं बैंक के हिसाब से काम करके दे रहा हूं, कृपया वही लोग जुड़े। अन्यथा ऐसे बीसी बनाने का कोई मतलब नहीं है जो वहां सेवा ही ना दे पाए या ना दे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो वही यूजफुल है, वही मीनिंगफुल काम होगा जहां पर मेरा बीसी कमिटेड हो कि हाँ मुझे काम करना है, बैंक के ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्विसेज हैं, मुझे पहुंचाने हैं। तो खाली नाम के लिए बीसी बनने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो जरूर कई जगह हमने देखा है बीसी बन गए तो काम नहीं कर रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि बीसी बनने के बाद आपका कमिटमेंट लेवल होना चाहिए कि यस यू हैव बिकम ए बीसी, आपको काम करना है, आपको प्रूव करना है। तभी बैंक भी सोचेगा कि हाँ मुझे बीसी बनाया और मैं इसके थ्रू बहुत सारे डिजिटल चैनल्स को प्रमोट करने के लिए बीसी को यूज करता है। कई बैंक जो है ऐसे इसी चैनल के थ्रू उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करते हैं, चाहे उनका ई पोर्टल कुछ लॉन्च करते हैं, कोई ई सुविधा लॉन्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं। तो लेकिन हमें वहां एक्टिव होंगे तब तो बैंक को लगेगा कि हाँ भाई मेरा बीसी है, ये काम कर रहा है, तो चलो इनको हम और सर्विस कुछ देते हैं। तो ये कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। अभी डिटेल में जो है वो हमें बताएंगे अभी साकेत झा जो है, he will tell us कि किस तरह का जो फ्लो है अकाउंट ओपनिंग करने के लिए वीकेवाईसी का। जैसे अभी वीकेवाईसी से रत्नेश्वर शर्मा जी ने बताया कि भाई आपका आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, आधार नंबर होना चाहिए और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लियर। तो ये दो चीजें आपकी होनी चाहिए, एक पेन और कागज होना चाहिए जिसमें आप साइन करें, और वीडियो केवाईसी के द्वारा 5 मिनट में आपका अकाउंट आप खोल सकते हैं। बहुत ज्यादा इतना लंबा प्रोसेस नहीं है और कुछ घंटों में ही, एक आध घंटे में भी आपको अकाउंट नंबर मिल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिना ब्रांच की विजिट के, बिना कस्टमर के वहां गए अगर हमें अकाउंट नंबर मिल रहा है तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। इट्स ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फॉर ऑल अवर बीसी। हमारे बीसीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इसके ऊपर वो थोड़ा सा फोकस करेंगे। कस्टमर एक्वायर हो गया, एक बार कस्टमर आपने बना लिया तो ऑनगोइंग बेसिस पे उसको लोन लेना है, उसको क्रेडिट कार्ड लेना है, उसको कोई और मान लीजिए आगे केसीसी का कुछ किसान क्रेडिट कार्ड लेना है, गोल्ड लोन, ये सब चीजें आएंगी। जब कस्टमर बन जाएगा तो आप ही से वो जुड़ जाएगा, तो उसको जरूर आगे हम बढ़ेंगे। अकाउंट एक बार हमने खोल दिया तो बहुत सारे काम जो है वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो कुछ सर्विसेज जो है ऑलरेडी लाइव है, मैं आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एईपीएस का जो विड्रॉल है, ऑनस ऑफस, वो दोनों चल रहा है। डिपॉजिट जो है वो भी ऑनस और ऑफस वो चल रहा है। तो आई होप मेरी आवाज आ रही है। तो कुछ सेवाएं जो है वो चल रही हैं, जो जैसे मैं बता रहा था, थर्ड पार्टी डिपॉजिट भी चल रहा है, मिनी स्टेटमेंट निकलता है, बैलेंस इंक्वायरी होती है, एपीवाई, पीएमजीबीवाई, ये भी हमारा लिंक उसमें आ जाता है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज जिस तरह से लॉन्च हुआ है वीडियो केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग भी शुरू हो चुका है। और बैंक की जो सोच है, करीब 30 प्रोडक्ट को ये यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहता है बैंक। 30 सर्विसेज जो हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सेवाएं होती हैं, एफडी करना, आरडी करना, किसी का चेकबुक का रिक्वेस्ट डालना है, मोबाइल सीड करना है, आधार, ये छोटे छोटे काम जो है वो सब चीजें आपको यहाँ पर बीसी को वर्चुअल ब्रांच बनाने की कोशिश है बैंक की, कि जो मेरा बीसी है इट शुड बिकम ए वर्चुअल ब्रांच फॉर द बैंक। तो वो एक कोशिश है बैंक की, तो उसको हमें आगे प्रूव करना है। तो जो भी बीसी हमारे बनते हैं, तो मैं साकेत झा जी को बताएंगे। मिस्टर सर, आई विल लाइक टू मिस्टर सर रत्नेश शर्मा जी सर, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ जी बताइए। सर, वीडियो केवाईसी आईडीबीआई बैंक की जो है वो 365 दिन 9:30 से 7 बजे तक चालू रहती है, मतलब सैटरडे, संडे, होली, दिवाली, कोई भी दिन हो, एवरीडे वी आर बताया कि पूरा मतलब आपको कोई छुट्टी नहीं है, सैटरडे, संडे, हॉलीडे, जैसे आज रामनवमी है तो चल रहा है, कन्वीनियंट है उसमें तो और भी खोलिए, जो हॉलीडे है
उसमें तो और भी अच्छा रहेगा, देखिए पब्लिक को भी वो आराम से अकाउंट ओपन हो जाएगा, बैंक के ऊपर भी प्रेशर नहीं रहेगा। तो एक तो वर्किंग डे में टाइम स्लॉट को चूज कीजिए। ये बहुत बार आता है, दूसरे बैंकों में भी आता है कि भाई हमारा वो जो है ना सर्वर पे लोड बढ़ता है। तो ये लॉजिकल बात है, बीसीज को भी समझना चाहिए कि क्या होता है कि वहां पर बैंक के ब्रांचेस हैं, वो सर्वर पे लोड है ऑलरेडी, बीसी का भी लोड जाएगा। तो वो जो वर्किंग आवर्स होता है 11 बजे से 3-4 बजे तक का जो समय रहता है, कस्टमर जब ब्रांच में जाता है उस समय पे थोड़ा सा लोड की वजह से बहुत बार समय लगता है कोई कोई काम में। मैं सिर्फ आईडीबीआई की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बीसी की बात करता हूँ। तो वो समय पे हम कोशिश करें कि सुबह के समय पे हम अगर 8 बजे हमारा सेंटर खोल दें, 8 से 11 बजे तक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। उसी तरह से 4 बजे से आप 6, 7, 8 बजे तक अगर आप काम करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा समय होता है कि बैंक के सर्वर पे भी लोड नहीं हुआ और काम आपका बढ़िया से, बैंक का कस्टमर हमारा अच्छा सेटिस्फैक्टरी सर्विस लेके, डिलाइटफुल सर्विस लेके वो चला गया। नाउ साकेत झा विल प्रेजेंट व्हाट आर द थिंग्स, प्रोसेस क्या है वीकेवाईसी। बिफोर स्टार्टिंग टू साकेत, बताइए। एक ये हम बार बार सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी वीएलई भाई बहनों को हमने इन्फॉर्म किया है, जो भी बीसी ट्रांजैक्टिंग नहीं होंगे आफ्टर 31 मार्च उनका कोड डिलीट हो सकता है। इसलिए हमने 15 दिन से उससे पहले भी बार बार कॉल करा के सभी जो भी इनएक्टिव बीसी हैं उनको कॉल करा रहा हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज दे रहा हूँ। हमारा स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सारे लोग आप लोग के टच में हैं और बोलते हैं कि आप ट्रांजैक्टिंग हो जाइए, क्योंकि उसके बाद वो सिस्टम उसको जो भी इनएक्टिव है, वो जो भी बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं उनका सिस्टम, उसमें कोई मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है और थ्रू सिस्टम वो डिलीशन में चला जाता है। फिर उसके बाद आप अफसोस करते हैं कि हम तो करने वाले थे, हम तो करना चाह रहे थे, हमारे पास तो ये समस्या थी इसलिए हमने नहीं कर पाया, लेकिन अब हमारा एक्टिव करवा दीजिए। तो एक बार डिलीट होने के बाद एक्टिव कराना वो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए सभी बीसी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज जो भी अभी तक बीसी हैं और इस मंथ में मार्च में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द, आज और कल का टाइम है आप लोग के पास, प्लीज ट्रांजैक्शन कर लीजिए या अकाउंट खोलिए, कोई भी फाइनेंशियल काम कर लीजिए बीसी पोर्टल से, ताकि आपका कोड बंद नहीं हो। तो इस बात को हमें उम्मीद है कि आप जो भी बीसी इंटरेस्टेड होंगे वो ट्रांजैक्शन कर लेंगे इस 2 दिन में। जो नहीं करेंगे वो यही समझेंगे कि आप एज ए बीसी इंटरेस्टेड नहीं थे और उसमें हमारा भी कोई वो रोल नहीं होगा जो हम करेंगे या बैंक करेगी। सिस्टम वो देखता है जो कि कौन ट्रांजैक्टिंग है कौन नॉन ट्रांजैक्टिंग है। जो इनएक्टिव होगा ऑटो अपने आप वो डिलीट हो जाएगा कोड। तो प्लीज इस बात को सभी बीसी, सभी गवर्नमेंट सेक्टर के बीसी इस चीज को ध्यान में रखें। साकेत बताइए। साकेत कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आदर्श सर, राजेश सर, जीएम सर। तो अभी जो है सर, अभी सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको मैं प्रोसेस जो बताने जा रहा हूँ, जो वीडियो केवाईसी बहुत सारे लोगों ने ओपन किया भी है और बहुत सारे लोग अभी ओपन नहीं किए हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट एक ओपन करिए, अपने घर में एक ओपन करिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाए, फिर कस्टमर को आप मैक्सिमम कस्टमर को इसमें एनरोल करिए। 0 बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको चेकबुक और एटीएम कार्ड भी फ्री में मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर के लिए। ये जो है आपका वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है, वो मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि आज के टाइम पे मोर देन 90% लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। आप थ्रू स्मार्ट वीएलई अगर आप लिंक भेज के भी कर सकते हैं, और वीएलई के सेंटर पे जब आप जाएंगे तो वहां पे भी जाके आप कर सकते हैं। ये जो लिंक है जो कि यहाँ पे क्लिक हेयर टू ज्वाइन है, यहाँ पे भी एक लिंक है, यहाँ पे भी ये पीडीएफ हमने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है और आप सबको मिला भी होगा। तो आप यहाँ पे जाके के क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर जब आप बीसी पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो सेम लिंक हमने वहां पे ऐड कर दिया, उस वहां पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा वो आपको। फिर इस पेज पे जाके कुछ बेसिक डिटेल्स होती है जो कि आप फिल करते हैं। सबसे पहले ये पेज आएगा, जैसे आप फिल करके उस प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे कुछ एक चीज है जो कंफर्म करनी है आपको, तो यहाँ टिक मार्क करके राइट हैंड साइड में देखेंगे, आप इसको टिक करके कंटिन्यू कर देंगे।
देन ये नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे कुछ आपके बेसिक डिटेल्स है, आपका अपना नाम भरेंगे, जो भी फर्स्ट नेम मिडिल नेम, ये सारी डिटेल फिल करके आप कंटिन्यू करेंगे। देन एक आपको ओटीपी आएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उस पे आपको ओटीपी आएगा। यानी जो आप अकाउंट ओपन में डालेंगे उसी वहीं यस से सर, यस सर, कस्टमर का है। हाँ कस्टमर का जो उसने मोबाइल नंबर डाला वहीं पे ओटीपी आएगा। जी Yes. सर। ये जो नीचे का जो ऑप्शन है आपका पहले पेज पे, जो मोबाइल नंबर का सबसे लास्ट ऑप्शन है, जिसमें आप जो भी मोबाइल नंबर एंटर करेंगे इसमें आपको एसएमएस, इसी मोबाइल नंबर पे एसएमएस सार्थक जी, रिसीव इसमें होगा। एक बात मैं ऐड करूंगा, Yes, इसके sir. अंदर जो है मोबाइल नंबर आप वही वाला एंटर करिए जो आधार से लिंक है, क्योंकि ओटीपी जो है वो यूडीआई से आएगा और एनएसडीएल से आएंगे। ओके, तो थैंक जो यू सर। तो अपना आधार का एक नंबर जो लिंक होता है ना, यस सर, बिल्कुल वही वाला नंबर कस्टमर का इनपुट करना है इसके अंदर, कस्टमर का। आधार linked mobile number only should be entered. Yeah, because the OTP will not come from IDBI Bank. It will come from UIDAI side and NSDL side. चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, आगे। तो जैसे सर ने बताया, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मोबाइल नंबर वही एंटर करिए जो आपने आधार में सीड कराया हुआ, आधार में जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। फिर ओटीपी आएगा, इसको वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो आपको बता रही है कि आपके पास 4G होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, और आपका ब्लू एंड व्हाइट शीट की जो भी रिक्वायरमेंट है वीडियो केवाईसी के लिए, वो चीज इसमें यहाँ पे बताई जा रही है। वो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो पैन नंबर है, ये आप जो भी आपके पैन नंबर होंगे वो पैन का डिटेल आप यहाँ एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, जो भी आपने एंटर किया हो जाएगा, इसको आप चेक करके कंटिन्यू कर देंगे। ये रिव्यू के लिए आपको दिया। फिर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका 12 डिजिट आधार नंबर है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर ये आपको फिर से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिर से वो सेम प्रोसेस से वैलिडेट कर देना है। इसको जब वैलिडेट करेंगे फिर नेक्स्ट पेज आएगा, जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है वो आपकी मदर नेम, मदर मेडन नेम, ये सब डिटेल आपको फिल करनी होगी। ये सब डिटेल फिल करके आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डालना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ एड्रेस एज पर आधार। तो जो भी आपके आधार में एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस